A very good morning to all of you. This is the online class for science class 9th chapter 8 motion. So in previous classes we have studied some basic terms: distance, displacement, speed, acceleration, velocity, and also studied some types of graphs like distance time graphs, velocity time graphs. Okay, in this class we are going to study equations of motion. So what are equations of motion? So equations of motions are relationship between these various quantities: distance, displacement, acceleration, velocity. Okay, basic definition आपको पता है what is acceleration, what is velocity. Okay, so these equations of motion interrelate between these quantities, right? So all these quantities are included in these equations of motion. So basically there are three equations of motion. Okay, three equations of motion in which speed और velocity, generally हम velocity ही लिखते हैं, velocity, acceleration, distance and time, these are basic four quantities. All these four quantities are related to each other, can be related to each other by these three equations of motion. Okay, so first I will write these three equations, okay, and then we will derive those equations by graphs, how those equations are derived by graphs. So I am writing three equations of motion. Look carefully and then note down and practice. So first equation of motion is velocity time equation. ठीक है, acceleration जो है तीनों equations में होगा. ठीक है, so first is velocity time. So in these equations of motion, what are we supposing? We are supposing that object is already in some motion. Okay, object has some initial velocity, right? Object is moving with some velocity. Okay, it might be 0 or any value. Okay, so that initial velocity is denoted by u. U is initial velocity. Initial velocity means velocity in the starting, in the beginning. Okay, then we apply some acceleration. A is acceleration, you know. Okay, and what is acceleration? You also know that it is the change in velocity. Acceleration is change in velocity per unit time, rate of change of velocity. So if there is some initial velocity, then there will also be some second final velocity. Okay, for example, if initial velocity is 0, car is at rest, then we apply accelerator, then velocity increases to some value. Or car is already has some velocity, it is already moving with 20 km per hour. Okay, then we apply acceleration and speed increases to, velocity increases to 30 km per hour. That is the difference between initial velocity and final velocity. Okay, U, A, V. T, you very well know, time. Okay, so these equations of motion are for uniformly accelerated motion. ये जो acceleration होगा वो हम constant ही लेंगे, एक ही acceleration लेंगे हम, uniform acceleration. इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. ठीक है, तो uniformly accelerated motion के लिए ये equations of motion होती हैं. ऐसा भी हो सकता है acceleration 0 हो तो हम उन equations में a को 0 पुट कर सकते हैं, no problem. So let's write these three equations of motion. So first is velocity time equation. Velocity time equation क्या होती है? Velocity time है तो velocity होगी final velocity is equal to initial velocity plus acceleration into time. This is the first equation of motion, right? V is final velocity, u is initial, acceleration into time. This is velocity time equation. Acceleration तीनों में होगा equations में. अगर आपको velocity और time दिया हुआ है तो आप ये equation use करेंगे. This is the first equation of motion. Second, what is second equation of motion? Second equation of motion is distance time equation. तो distance time, distance को हम लिखते हैं small s. ठीक है, small s.
So it says that distance is equal to initial velocity into time. ठीक है, multiply initial velocity multiplied by time plus half multiplied by a and t square. This is the second equation of motion. ये आपको लर्न होनी चाहिए. ठीक है, S is equal to ut plus half at square. This is the second equation of motion. It means that if initial velocity is given, okay, and in some time and acceleration, then how much distance does the object cover? So we can find out by this equation. Third equation of motion is distance velocity or velocity distance equation. It is represented by 2as. 2 multiplied by acceleration multiplied by distance is equal to v square minus u square. It means final velocity square minus initial velocity square. This is the third equation of motion. It represents the relationship between distance and velocity. So first is velocity time equation. Velocity time equation. ठीक है. Second is distance time equation, and third is distance velocity equation. तो इसके नेम बेशक आपको याद ना हो, लेकिन जो इक्वेशन है वो आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए. दीज इक्वेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हायर क्लासेस में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है. ठीक है, सो इनको अच्छे से आपको लर्न करना है. ठीक है, और लर्न करने से पहले इनका मीनिंग भी समझना है कि व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस, इनका यूज क्या है. ठीक है, सो एज यू कैन सी दैट एक्सेलरेशन इज कॉमन इन ऑल द इक्वेशंस. एक्सेलरेशन अप्लाई होगा. ओके, बाकी एक एक कांस्टेंट, एक एक जो क्वांटिटी है वो तीनों इक्वेशन में मिसिंग है. फर्स्ट इक्वेशन में डिस्टेंस नहीं है, सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं है, थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं, बट एक्सेलरेशन सभी में है. ओके, सो कैसे आप इक्वेशंस को यूज करेंगे? देखिए फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, इसमें क्या मीनिंग है इसका, दैट एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन अप्लाई किया गया, स्पीड वेलोसिटी बढ़ाई गई. ठीक है, तो व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी ये हम फर्स्ट से निकाल सकते हैं. सेकंड भी यही है, इसमें डिस्टेंस है, the object has some initial velocity, acceleration is applied, then after some time what will be the distance covered. ठीक है, कुछ टाइम बाद डिस्टेंस कितना कवर होगा इतने एक्सेलरेशन से, इतने टाइम के बाद, अगर इनिशियल वेलोसिटी इतनी है. थर्ड इक्वेशन में एक्सेलरेशन है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज समथिंग, ओके, एंड फाइनल वेलोसिटी इज गिवन, देन हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड. और अपोजिट पूछ सकते हैं कि अगर इतना s डिस्टेंस कवर किया गया है और इनिशियल वेलोसिटी u है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, वो भी आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वेरी इंपॉर्टेंट. नोट देम डाउन. जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे आपको लर्न हो जाएगा. एक बार आप अभी लर्न करें और प्रैक्टिस आपकी न्यूमेरिकल्स के साथ हो जाएगी. ओके, सो दीज आर द इक्वेशन. डिस्टेंस को हम पोजीशन भी लिख सकते हैं, पोजीशन टाइम, डिस्टेंस टाइम कीजिए. सो नाउ वी विल डेराइव दीज इक्वेशंस फ्रॉम अ ग्राफ. ग्राफ हम लास्ट क्लास में हमने किया था, तो वी विल ड्रॉ अ ग्राफ एंड फ्रॉम दैट वी विल डेराइव दीज इक्वेशंस. उससे क्या होगा, डेरिवेशन से आपको इन इक्वेशंस का मीनिंग अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ. यू कैन सी टू एक्सिस, क्योंकि एक्सिस पर आप टाइम देते हो, इधर आप वेलोसिटी लोगे. ठीक है, वेलोसिटी इनिशियल हो सकती है, फाइनल हो सकती है, कुछ भी. सो मैंने आपको पहले बोला था, इसमें हमने ऐसे सपोज किया है कि ऑब्जेक्ट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी. तो इनिशियल वेलोसिटी है कुछ, मींस यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर किसी भी वेलोसिटी से, तो उसको हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है. तो यहाँ से मोशन स्टार्ट होगा
और क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, देयर इज सम काइंड ऑफ एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इज लीनियर, सो इट विल बी लाइक दिस. ओके, एंड ये लिमिट यहाँ पर है टाइम की, 4 सेकेंड, 4 आवर्स, 5 आवर्स, कोई भी टाइम हो सकता है, वहां तक वो ऑब्जेक्ट मोशन में है. ठीक है, सो ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u, दिस इज u, एंड मूव्स फॉर t आवर्स और t सेकेंड्स, एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी इज v. तो ये v है, v आपको पता है y एक्सिस में है, तो v होगा y एक्सिस पर इधर. ठीक है, अगर आपको y एक्सिस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, देन यू विल ड्रॉ परपेंडिकुलर टू दिस y एक्सिस एंड सी कि यहाँ पर पॉइंट कौन सा है. ओके, सो ये आपका हो गया. क्योंकि अभी इस ग्राफ से हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, स्लोप फाइंड आउट करते हैं, सो इसलिए हम इसको जो है एनक्लोज कर लेंगे, बंद कर लेंगे. कैसे, देखिए यहाँ पर मोशन फिनिश हो गया है, तो हम एक डॉटेड लाइन से और हल्की लाइन से इसको टी टाइम तक, ये टाइम टी हो गया, यहाँ तक एनक्लोज कर लिया हमने. इसको भी ऊपर भी हम एनक्लोज कर लेते हैं, ये. ठीक है, सो ये हो गया इधर क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी v, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम. ठीक है, और आपको दिख रहा है इधर कुछ ट्रायंगल सा बन रहा है, तो हम एक ट्रायंगल भी इधर ड्रॉ कर लेते हैं, और इस तरीके से एक अच्छा सा फिगर आपको मिल गया है इसमें. ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं, ओरिजिन O बोलते हैं, A पॉइंट इसको बोलते हैं, B C D और E, हमने इसको लेवल कर लिया है इस तरीके से. ओके, इन दिस वे वी हैव गॉट मेनी लाइन सेगमेंट्स. ये सब की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, हम OA से स्टार्ट करते हैं, OA. ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OA? ऑब्वियसली इट इज T, तो OA T है. ठीक है, OA इज इक्वल टू T. ओके, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और आपको पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो कोई कहीं भी आपको पैरेललोग्राम दिखाई दे तो अपोजिट साइड्स आपको इक्वल लिखनी है. AB इज इक्वल टू OE, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, this side equal to this side, and this side equal to this side, and this equal to this. तो opposite sides जो भी होंगी equal होंगी. So OA is equal to T, so EB will also be equal to T, and DC will also be equal to T, क्योंकि ये सभी x की वैल्यूज हैं. ठीक है, सिमिलरली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? AB की वैल्यू कितनी होगी? थिंक अबाउट दिस, पॉज द वीडियो एंड थिंक. देखिए AB यहाँ तो कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो y एक्सिस से ही आपको वैल्यू मिलेगी. कोई भी वैल्यू है वो आपको x एक्सिस से मिलेगी या y एक्सिस से मिलेगी. तो y एक्सिस पर देखिए क्या है ये, दिस, हाउ मच इज दिस? दिस इज u. ओके, दिस डिस्टेंस इज u, इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, तो AB कितना होगा? AB भी u के इक्वल होगा. ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? ये पूरी लाइन A to C, इसकी वैल्यू कितनी होगी? x एक्सिस पर देखिए AC इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस, AC is equal to OD, right? So OD की वैल्यू कितनी है? फाइनल वेलोसिटी तक V. So OD is equal to V. So AC भी V के ही इक्वल होगा. ठीक है, AC is also OV. ठीक है, now what is the value of BC? क्योंकि BC बीच में है, तो बीच में आपको माइनस करना पड़ेगा टोटल में से. BC is equal to AC minus AB. तो AC की वैल्यू अभी आपने D ली और AB की वैल्यू U है, तो BC की वैल्यू हो जाएगी D माइनस U. बहुत सिंपल है, आप एक बार देखते ही समझ जाएंगे कि कौन सी साइड किसके इक्वल है और कैसे होगा. ठीक है, तो BC की वैल्यू आपको मिल गई. सो OAT, EBT और CBT, और इनकी वैल्यूज भी, साइड्स की वैल्यूज भी आपको पता चल गई. y एक्सिस पर V है, ध्यान रखिए y एक्सिस पर U और V है, और x एक्सिस पर टाइम. ठीक है, सो वेरी इजी. अभी हम इक्वेशंस को डेराइव करना शुरू करते हैं. तो पहली इक्वेशन जो थी वो आपको याद है, दैट वाज v इक्वल टू u प्लस 8. हाउ कैन वी डेराइव दिस इक्वेशन? देखिए
ये इक्वेशन बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसकी ग्राफ डेरिवेशन की भी जरूरत नहीं है। देखिए आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद है, इसी को जो है इंटरचेंज किया है क्वांटिटीज को, तो at इज इक्वल टू v माइनस u, राइट? देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v? v विल बी u plus at, right? So that is how we can easily come to this equation. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v minus u is equal to 80, ठीक है? अब हम इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सेम तरीका है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। देखिए एक्सेलरेशन लेकर हमको चलना है, ठीक है? एक्सेलरेशन होता क्या है? ग्राफ मोशन कहाँ हो रहा है? मोशन इस लाइन पर हो रहा है। बस मोशन की जो इक्वेशन है वो ग्राफ है जो बस यहाँ तक है, EC है जो मेन लाइन है, ठीक है? इस पर मोशन, ठीक है? सो हाउ कैन वी फाइंड आउट एक्सेलरेशन फ्रॉम द ग्राफ? The slope of velocity time graph gives us acceleration. What will be the slope? EC line का हमको slope निकालना है, right? That is equal to slope पता है y axis upon x axis होगा, ठीक है? Slope is equal to change in y2 minus y1 and x2 minus x1. तो ये लाइन है, इस लाइन के इनक्लोज में हमें देखना है y की वैल्यू किधर है? ये है y की वैल्यू BC and x की वैल्यू है EB, right? BC upon EB. This will give the acceleration, ठीक है? हम यहां से जो है काउंट कर रहे हैं BC upon EB is value of slope और acceleration. तो हम स्टार्टिंग से ओरिजिन से काउंट करते हैं मोशन को, तो चेंज इन y is equal to BC and change in x is equal to BE, that is slope, that means acceleration. वैसे भी देख लीजिए एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वही जो है एक्सेलरेशन। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? BC की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी हमने? BC इज इक्वल टू v माइनस u, अभी हमने निकाला था। EB की वैल्यू क्या है? EB की वैल्यू देखिए इधर तो नहीं है, एक्स एक्सिस पर ही मिलेगी। EB इज इक्वल टू t, सो EB इज इक्वल टू t, ओके? और स्लोप मींस एक्सेलरेशन ही होता है, ओके? सो A इज इक्वल टू पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इसमें इक्वेशन पुट कीजिए वैल्यूज v माइनस u अपॉन t, ठीक है? सो नाउ इक्वेशन कैन बी इजीली डेराइव्ड. So it implies v minus u is equal to 80 and sorry, v is equal to u plus 8. This is the first equation. डेरिवेशन का पर्पस यही है कि आपको बेसिक समझ आए कि एक्सेलरेशन क्या होता है और क्या कैसे रिलेशन आया है, और जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो सिर्फ इक्वेशन को यूज करके आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है? एक्सेलरेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? राइट इट डाउन. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखो और ग्राफ से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट, विच इज s पोजीशन टाइम ut plus half at square. This is the second equation of motion, right? s is equal to ut plus half at square. So how can we find out this from this graph? Let's see. So I ask you one question, that how can we find distance from velocity time graph? Last class में हमने किया था. Think about this. By the area enclosed under the graph. तो इस जो आपका मेन जो लाइन है ये वाली, इसके अंदर जितना भी एरिया क्लोज है, ये वाला और ये वाला, इसका एरिया हमें निकालना है, उतना डिस्टेंस कवर होगा, ठीक? तो एरिया निकाल लीजिएगा, जैसे कि कल हमने निकाला था वैसे ही निकालना है. खुद से करिए इसको, इसमें बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है. अगर आपने अभी तक क्लासेस अटेंड किए हैं सारी, तो बहुत इजीली कर सकते हैं. वीडियो को पॉज करो और खुद से करो, ठीक है? उसके बाद देखना स्टार्ट करो. तो अभी आपने कर लिया है तो देखो क्या होगा. एरिया पहले ट्रायंगल का निकालेंगे, फिर पैरेललोग्राम का निकालेंगे, ठीक है? तो एरिया क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है? एंड पैरेललोग्राम का साइड इनटू साइड. तो पहले हम निकालेंगे
एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल को लिख लेते हैं, एरिया ट्रायंगल प्लस एरिया पैरेललोग्राम, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है फॉर्मूला। तो इस ट्रायंगल का बेस क्या है, बीई है, और बीई की वैल्यू क्या है, टी है, तो बेस हो गया टी। हाइट कितनी है, हाइट इस ट्रायंगल की बीसी है, बीसी मींस वाई एक्सिस पर देखिए ईडी, ठीक है, और ईडी की वैल्यू क्या है, बी माइनस यू, राइट, तो बी माइनस यू, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। प्लस पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, साइड इंटू साइड, बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है, टाइम टी, ओके, और हाइट कितनी है पैरेललोग्राम की, ए बी, ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी है, इस साइड देखिए वाई एक्सिस पर यू, तो इट इज इक्वल टू यू। तो इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, पहले वो छोटा है तो उसको आगे लिख लेते हैं, यू टी प्लस हाफ बी माइनस यू, ठीक है। सो बी माइनस यू बहुत कॉम्प्लेक्स सा, और इसको हम इजी करते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास होना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन में। एक्सेलरेशन नहीं होगा तो मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन सही नहीं हो पाएगी। तो ए कैसे लाएंगे, तो ए ले आइए, बी और यू में और ए में क्या रिलेशन होता है आपको पता है, ए इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, ये आप पहले कर चुके हैं, एक्सेलरेशन बेसिक है। तो बी माइनस यू क्या होगा, ए टी, है ना, बी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो बी माइनस यू की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देन फाइनल इक्वेशन विल बी यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी, मतलब हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अगर देखोगे सिर्फ तो समझ नहीं आएगा, जब तक पेन खुद से नहीं चलाओगे नहीं कर पाओगे। तो समझ आ गया होगा, अब आप फिर से ट्राई करो, खुद से करो इसको, फिर भी नहीं आता है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो, पर बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, ठीक है। पहले आपको बस इसमें आपको ग्राफ के रूल्स पता होने चाहिए, एरिया कैसे निकालते हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं। तो एरिया निकाल लिया हमने, फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर ली हमने यहाँ पर, इतना हमने किया, ठीक। सो ये हो गया। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड इक्वेशन, राइट इट डाउन योरसेल्फ, दैट वाज द थर्ड इक्वेशन, राइट, पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन, 2as is equal to b square minus u square। तो इसमें भी देखिए डिस्टेंस है, और डिस्टेंस आप ग्राफ से एरिया से निकालते हैं, तो वही चीज़ है, एरिया ही निकालना है, जैसे हमने लास्ट इक्वेशन में किया था। बट इसमें उसमें हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था इसको, राइट, एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम। इसमें हम पार्ट्स में डिवाइड नहीं करके इसको पूरा जो ट्रेपीजियम बन रहा है आपका, उसका एरिया निकालना है। ट्रेपीजियम का एरिया मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ट्रेपीजियम क्या होता है, तो दो साइड्स पैरेलल एंड दो साइड्स नॉन पैरेलल, ये दोनों नॉन पैरेलल, ये पैरेलल, ठीक है। और इसकी ये हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये दो, तो OE प्लस AC, OE प्लस AC मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हाइट के लिए जो आपका जो पैरेलल साइड्स है उसमें छोटी वाली जो पैरेलल साइड्स है वहां से लेकर एक परपेंडिकुलर आप दूसरी लाइन पर ड्रॉ कीजिए, जो हमने पहले किया था वही। तो EB जो है इसकी हाइट है ना। अगर हम इस ट्रेपीजियम को ऐसे रखते हैं रोटेट करके, तो हाइट जो है यही आएगी आपकी EB, ठीक है। और किसी तरीके से हम हाइट नहीं निकाल सकते। नॉन पैरेलल साइड्स में तो देखिए हाइट अलग अलग है, लेकिन जो पैरेलल साइड्स की तरफ है उससे हम हाइट निकालेंगे, जो ये पॉइंट है इससे, ठीक है, इस तरीके से। दिस इज द हाइट EB B। तो ये वैल्यू है एरिया की, मतलब डिस्टेंस की, S इज इक्वल टू दिस, तो हाफ। ये वैल्यूज आप बिल्कुल पता होनी चाहिए। OE इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना वेलोसिटी है U। AC देखिए y एक्सिस पर, वर्टिकल लाइन है तो y एक्सिस पर ही देखिए, ये पूरा कितना है, कितनी वेलोसिटी है, v है यहाँ तक, u प्लस v। BE कितना है, t है, ओके। सो बस आप यू कैन टेक इट दिस साइड, 2s इज इक्वल टू u प्लस v मल्टीप्लाइड बाय t, ओके। सो इक्वेशन है सिर्फ पोजीशन और वेलोसिटी की। तो टाइम को हम एलिमिनेट करेंगे, टाइम को एलिमिनेट करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इक्वल टू u प्लस a t। सो इट implies टाइम इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ
ये वाला पार्ट दिया, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ t इन दिस t, so it will come out 2s is equal to u plus v, ओके, मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू पुट कीजिए v माइनस u अपॉन t, राइट, इतना आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नाउ पुट a ऑन दिस साइड, इट विल कम आउट 2as is equal to u plus v, v माइनस u, या फिर प्लस साइन है तो आप अपोजिट कर सकते हैं, v प्लस u मल्टीप्लाइड v माइनस u। तो मैथमेटिकल आइडेंटिटी होती है, आपको पता है, a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आपने कर लिया होगा मैथ्स में, है ना। जो a प्लस b और a माइनस b होती है वो ये होते हैं, ठीक है। सो a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसी तरीके से v प्लस u एंड v माइनस u विल बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। So in this way we have derived third equation of motion, 2as is equal to v square minus u square, okay। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, बस इसमें ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट इसकी eb के इक्वल होगी, वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद t को एलिमिनेट करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। इसको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसका पर्पस यही है कि आपको समझ आए कि ये इक्वेशन आई कैसे, और ये इक्वेशन का पर्पस ये है कि ये डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताता है, इसलिए हमें टाइम को एलिमिनेट करना पड़े, और इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको समझ आएगा इक्वेशंस का यूज, ठीक है। दैट्स हाउ वी कैन प्रूव दैट दिस इक्वेशन इज राइट, और ग्राफिकल मेथड से हमने इसको प्रूव किया, ओके। यू हैव टू लर्न दिस थ्री इक्वेशंस, तीनों इक्वेशंस को लर्न करो, लिखो 3-4 बार, और एक बार ग्राफिकल मेथड से इसको डेराइव करो, ऑलराइट।